ठीक है. Do you guys see the button for recording? Yes. Okay, great. ठीक है. So I'll get into it. Wait a minute, I'm getting a notification. Perfect. ठीक है. So 6 सवाल that we have to do in total, and in these 6 questions I've divided them as such that most of them focus on a mixture of different types of distribution functions that you've covered. You've covered geometric, you've covered Poisson, you've covered negative binomial. So I've tried to keep them sort of scattered throughout these 6 questions, and at the same time some of those parts will have the marginal distribution, conditional distribution, so conditional probabilities, so that will give you an idea on what you did in the Friday wala lecture, so to speak. Okay. Say it. So question one: a coin is tossed twice. So basically, one thing that I know straight off the bat is that my n is 2. Basically, I'm trying to annotate as much as I can so that it can help you later on. Okay, a coin is tossed twice. Let Z denote the number of heads on the first toss. Okay. So what that tells me, I'll write that here. Say Z मेरे event is the number of Z is equals to the number of heads I get on the first toss. मैं font सही कर दूँगा बाद में. On the first toss, and W is the total number of heads. ठीक है. So the distinction between Z and W is important. Is that we have to realize that Z basically पहले coin toss के बारे में. So Z can only be 0 or 1, because either you will get a head or you will not. Or W is the total number of heads that we can get. ठीक है, in the entire sample space, so to speak, right? My bad. अब उसके अलावा उन्होंने हमें बताया हुआ है कि coin unbalanced है, which basically tells us that the probability of me getting a heads is 0.4, while at the same time the probability of me getting a tails is 0.6. These are the informations that I've just gotten from the question. I've kept them sort of read so that ये मैं बता सकूं कि these are the stuff जो मुझे खाली question से ही मिलके पता चली है. सही. Part is saying find the probability distribution of W and Z. ठीक है. So one thing I need to keep a check of. Okay, this isn't working that well. Right. So basically मुझे एक function बनाना है that can tell me the distribution of events जिसमें W और Z सारे take place हो. तो क्योंकि मुझे पता है कि Z either 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो I'm going to write this as WZ. अब आप लोग मुझे बताएं कि Z की क्या क्या values हो सकती हैं, keeping in mind कि the total number of coin tosses is 2. N is equals to 2 and W denotes the total number of heads. So आप मुझे बताएं जैसे F की क्या क्या values हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे 0 could be a possible value, 0 1 could be a possible value. ऐसे I want you guys to sort of fill the entire sample space, so to speak. Do you guys have any idea? Like, it's fine if you get it wrong or something. I just want to sort of get an idea of your thought process. इसके अलावा 1011 2021 ठीक है, perfect. 10 11 11 और 20 and 21 ठीक है. F20 and F is 21. Perfect. 22 oh sorry yes 21 हाँ, 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके राइट साइड पे Z है और Z की खाली वैल्यूज 0 और 1 हो सकती है. ठीक है, बट अच्छी बात है ये आपने खुद ही रियलाइज कर लिया. ठीक है. सो दिस इज द सैंपल स्पेस आई हैव. अब the idea is I want you to conceptualize what every value of F means, in the sense that I'm going to try to sort of make a table. I'm going to try to, okay, this isn't working that well for me. Do you guys see a ruler by any chance?
ठीक है, अब नजर नहीं आ रहा होगा ना? ठीक है, आप मुझे एक एक करके बताएं कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। कोई मुझे बता सकता है F00 का क्या मतलब है? Basically चलो I'll do the first one and I'll ask you guys to do the rest, so to speak. F00 का मतलब ये है कि चलो छोटी वैल्यू z है ना, तो z से स्टार्ट करते हैं। मतलब पहली कॉइन टॉस में मेरा 0 है, तो मतलब पहली कॉइन टॉस में मेरा टेल आया है। और W0 का मतलब ये कि दोनों बारियों में मेरा क्या कहते हैं, हेड नहीं आया है। So इसका मतलब ये हुआ कि in those two coin tosses I have, I'm getting tails. Does that make sense? जी नुमान, आपका एक सवाल है? यस, ये जो आपने लिखा है 01 या 20, जी, ये केसेस तो नहीं हो सकते ना, नंबर ऑफ हेड? I ये agree. ये मैं भी इस पे आने वाला था. I'm very glad that you figured it out. अभी हम इन पे आएंगे. Just hold on to that idea for a minute. लेकिन you're on the right track. सही है. ये tails है. अब कोई मुझे इसकी probability बताए क्या होगा अगर tails है? Point 0.6 into 0.6. Perfect. बेहतरीन. To the power. सही है. अब 10 का क्या मतलब हुआ? सॉरी, ऑर्डर पे चलते हैं. लेट्स कीप इट एट 01. 01 का बेसिकली मतलब हुआ कि मेरी पहली बारी में हेड्स आए और मेरा टोटल हेड्स 0 है. सो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हुई. डज दिस मेक सेंस? क्योंकि इफ यू गेट दिस देन बाकी सब इज वेरी इजी फॉर यू. अगर किसी को नहीं समझ आया तो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन स्टार्ट टॉकिंग इन द मिडल ऑफ द ट्यूटोरियल. इट्स फाइन. ठीक है, बट द आइडिया इज दिस इज नॉट पॉसिबल. राइट. अब हम आते हैं F10 पे. F10 का मतलब ये है कि मेरी पहली बारी में हेड नहीं आया है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ हेड्स मेरे 1 है. तो मतलब द ओनली केस दैट्स पॉसिबल दैट्स टेल हेड्स. एंड इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.6 into 0.4. ठीक है. I'm gonna give you guys 2 minutes, 2 to 3 minutes. I'll wait for that point in time. I want you guys to fill all of these values. मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या values होंगे. ठीक है, आप मुझे बताएं इन सब की values की क्या क्या होनी चाहिए with the probabilities as well. The idea of me doing this is because जो एक्चुअल प्रैक्टिस पार्ट होता है ना, जो प्रैक्टिस आप लोग सीखते हैं, वो इस एक्टिविटी के थ्रू पॉसिबल हो रहा है. सो आई बी क्वाइट राइट नाउ. Actually, don't worry about this speaking, so to speak. I will refine it and I will write it down in the PDF that I used to write in the previous tutorial, and I'll upload that on LMS. Is anyone done? चलो, ओके, नुमान इज डन. एब्सोल्युटली ग्रेट. ठीक है. सो आप मुझे नुमान, आप मुझे F11 का बताएं कि क्या केस है. नुमान, कैन यू हियर मी? अच्छा, हेड टेल. परफेक्ट. ठीक है. हेड सही है. और हेड टेल ये इस माय बैड, हेड टेल ये इसलिए क्योंकि आपकी पहली बारी में आपका हेड आया और आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में आपका एक हेड है, तो मतलब दूसरी बारी में टेल होगा.
and that will have the same probability as before, which is 0.4 into 0.6. What's F20? कोई चार्ट पे बेशक बता दो. Zero, perfect. Zero. Can anyone else explain why it's zero? It's completely fine if you don't want to. I just want to have as much participation as I can get. ठीक है. So it's zero because कह रहे हैं कि पहली बारी में आपका कोई heads आपका tail आया और दोनों बारियों में आपके दोनों heads हैं. So that's not possible. ठीक है, क्योंकि इसका actual जो हो सकता था वो tail हो सकता नहीं. The only case that would have been possible would have been head अगर आपके total number of heads दो हैं, लेकिन उन्होंने बताया हुआ कि आपकी पहली बारी में tails आएगा, तो इसकी कोई probability नहीं होगी. और 2-1 का मैं बता देता हूँ, कह रहे हैं कि आपकी पहली बारी में हेड्स हैं और दोनों बारियों में आपके दोनों हेड्स हैं, so that's heads and that's basically 0.4. ये माइनस कहाँ से आ रहा है? 0.4 into 0.4. ठीक है. अच्छा, one very important thing about PDFs is that जब आप पूरा कोई joint PDF बना रहे हैं ना, and if you cover the entire sample set, it should add up to 1. So for confirmation, see if this adds up to 1. ठीक है. अच्छा guys, just to confirm, I got a notification from, I don't know, Microsoft Whiteboard. आपको मेरी स्क्रीन से नजर आ रही है? Hello? Can you guys see my screen clearly? Okay, perfect. ठीक है, you can. अब see, we're done with part A, जो हमें joint PDF बनाना था. हमने सारे sample points पे उनकी probabilities बता दी of every case of W and Z together. अब मैं जा रहा हूँ part B में. अब the thing is, once you found the joint probability distribution now, the marginal distribution of D and Z becomes very easy to find out, because it's essentially saying कि अगर मैं कह रहा हूँ कि if they ask you कि find the marginal distribution of W, so basically what they're saying is for all values of basically W की value, बेशक आपकी यहाँ पे जो भी value, बेशक 0 हो, बेशक 1 हो, it doesn't matter, but all values of a certain value of W हमें cover करना है. मिसाल के तौर पे one case would be if they say find ये मैं अगर W का cover कर रहा हूँ, ठीक है, तो F0 का क्या मतलब हुआ? What is the sum of all values of the entire distribution जिसमें आपकी W की value 0 है? और अगर आप notice करें, ये हमने यहाँ पे, if you can see my cursor, ये जो पहली दो values हमने calculate की थी, ये these cover all the values of W of when W is equals to 0. So basically it's 0.6 into 0.6. ठीक है, ये 0.36 होता है. ठीक है. If I have to find the entire basically marginal distribution of W, when I write this, I basically mean W is equals to 0, W is equals to 1. इसका क्या होगा? 1 0 1 1, basically 0.24 into 0.24, that's 0.28. ठीक है. और आखिरी केस था when basically W is equals to 2. Basically उसका एक ही केस था और जो हमने कैलकुलेट किया था that was 0.16. ठीक है. अब Z का भी वही होगा. अगर Z का मैं निकालूं तो Fz is equals to 0, मतलब ये F00 इसमें आएगा, F10 इसमें आएगा और F20 इसमें आएगा. F00 is क्या कहते हैं 0.6 0.36, उसके अलावा प्लस 0.24 एंड दैट्स इट. ठीक है, ये मैंने Z इक्वल्स टू 0 कर दिया. अब Z इक्वल्स टू 1 का क्या होगा? F01 जिसका कोई केस नहीं है, F11 जिसका है 0.24 और उसके अलावा F21 which is 0.16.
ठीक है, और ऐसे मैंने पूरा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया of W and Z separately. I don't know what's going on. I apologize, but I'm trying my best. If anyone knows what's happening, please let me know. Here. ठीक है, हो गया. ठीक है, अब पार्ट सी पे आ जाते हैं. अच्छा, अभी तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे बता दें. I'll repeat everything I've said, but if everything is clear, I'll move on to the next part. It says find the probability that at least one hit occurs. ठीक है, so basically what they're asking is basically total case में total से case में what is the probability that at least one hit occurs. So essentially what the only case in W and Z that deals with the total number of heads that we have, that is W. So what they're essentially asking me to find is find probability of W greater than equals to 1. ठीक है, क्योंकि Z तो खाली पहले कौन टॉस करता है, हमें W से इंटरेस्ट है क्योंकि इट टेल्स अस द एंटायर सॉर्ट ऑफ सैंपल स्पेस में आपके नंबर ऑफ हेड्स कितने आते हैं. तो फॉर P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड द केसेस जिनमें से आपकी जो W की वैल्यू है वो 1 है. ठीक है, सो although the entire cases that can be covered are 1 0 plus F11 and plus F21. नोट इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 2 भी हो सकता है. और हमने सारी जो इनकी प्रोबेबिलिटीज थी वो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट कर ली है. ऑल यू हैव टू डू इज ऐड दोस वैल्यूज टू दिस एंड देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड अकर. ठीक है, सो वी आर डन विद क्वेश्चन 1. Are there any questions? I'll wait for like 10 seconds, and if not, I'll move to like the next part. Also, one important thing, this call will end in like 45, so the entire 40-minute period. Don't worry, when this call ends, I'll start a new call from the same link. Okay, so you just have to join the call from the same link. Okay, if there are no questions, I'm moving on to the next question. Okay, G, do you have a question? Take a question 2. Suppose you roll two fair-sided dice. So basically, I have one die which is text is here. So I have two dices. One is red and one is green. This is something that they've told me. Okay, दोनों 6-sided die हैं. One of which, let X be the number on the red die. Sahi. What's important to note is that the only variable that X is concerned with is red, not green. And basically 0 and जो Y का जो variable है ना, that deals with both cases. अब मैं cases define करूँगा. 0 का मतलब क्या है कि both numbers are the same. Basically means red is equals to green. 1 का मतलब क्या होगा? If green die is greater than has a greater number. So the number on the green die is greater than the red die, and 2 is for when the red die has a greater number. Okay. Honestly, this would have been much easier to do had I had my tablet, but unfortunately there's internet issues right now. Okay. The question is A, find the joint PMF of X and Y. Okay. So basically हमें जो question मांग रहे हैं ना, हमें essentially P X comma Y बनाना है. ठीक है, and we're going to do the same process that we did in the last question. ठीक है, अब आप ना I'm going to make a table right now. ठीक है, और उसके हिसाब से ना हम values आप लोग fill करेगा. ठीक है, just give me a second. I'm going to make the table right now. One, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ये बेसिकली हमें वैल्यूज बता रहे हैं एक्स की. ठीक है, जो नोट करें खाली रेड से डील करता है. दिस विल बी इंपॉर्टेंट लेटर.
अब मैं एक और टेबल बना रहा हूँ इसी के साइड पे 1 2 3 नहीं 0 1 2 माय बैड, क्योंकि ये इवेंट्स है ना 0 1 2 और y, ये खाली y के नॉट दीज आर वैल्यूज फॉर y दैट कंसर्न्स विद बोथ केसेस, जो केसेस मैंने ऊपर डिफाइन किए हुए यहाँ पे। सही है। अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि यू हेल्प मी फिल दीज वैल्यूज। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सारे केसेस इस प्लॉट में बता रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू होगी टेबल में तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, व्हाट दे सेइंग इज y 0 है। y का मतलब ये है कि द रेड वैल्यू एंड द ग्रीन वैल्यू शुड बी द सेम, सो दैट विल बी द केस फॉर, मिसाल के तौर पे अगर 1 है ना तो वो खाली एक ही केस में हो सकता है, तो इट विल बी, ठीक है। You know what, I'm going to leave this table now. The idea is this table will help me, यही बात की बात है। ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मुझे एक और टेबल बनाना पड़ेगा इधर of the same premise, so to speak. ठीक है, this table that I'm making right now, this will help me find sort of the sample space um, of both dices being rolled, so to speak. One, two, three, 4, 5, 6। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छा, ये जो हमने ऊपर इवेंट्स डिफाइन किए थे ना, मैं अपनी आसानी के लिए ना इनको डिफाइन कर रहा हूँ एक इवेंट के तौर पे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन ये जो मैंने ए बी सी डिफाइन किया है, आप मुझे बताएं कि अगर राइट साइड वाली वैल्यूज आपकी एक्स है और वाई नीचे वाली वैल्यूज सॉरी रेड है और नीचे वाली वैल्यूज आपकी सारी ग्रीन की है, तो अगर 1 1 है तो इनमें से कौन सा केस हो रहा है, ए बी या सी? So I'll help you with this. This is A. क्योंकि the value on the right side is 1. Basically, the value of red is 1 and the value of green is also 1. So this is case A. अब 2 और 1 का देखते हैं कि क्या होता है। The value of red is 2. The value of green is 1. So basically, red is greater than green. So this is sort of C. ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर ऑल केसेस दिस विल बी सी। ऑल, क्योंकि आपकी ग्रीन की वैल्यू 1 है ना, तो इसलिए आपकी सारी ये वैल्यूज के जो केसेस होंगे वो सी होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 2 पे। सही है, ग्रीन की वैल्यू है 2 और रेड की वैल्यू है 1, सो दिस इज केस बी। बोथ ऑफ देम आर 2, दैट्स ए। दिस इज सी अगेन एंड मुनीब, आप काइंडली ये लिख देंगे कि जो ऊपर वाला टेबल है वो ग्रीन वाला है कि रेड वाला है? ठीक है, कंफ्यूज हो रहा हूँ इससे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं रख देता हूँ। ये है आपका, ये है रेड और मैं एक और बना देता हूँ और ये है ग्रीन। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। तो आपकी बात सही है, दिस विल मेक इट इजियर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मैं एक और काम कर देता हूँ। आई एम सॉरी अगर लाइन सही नहीं हो, बट दिस इज रेड, दिस इज टेरेबल लाइन, टेरेबल लाइन, बट ठीक है, दिस विल हेल्प मी सॉर्ट ऑफ विजुअलाइज एवरीथिंग, राइट? दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन। डोंट वरी अबाउट द वर्किंग, मैं इसको फेयर करके कर दूंगा। ठीक है, अब 3 के केस में दिस इज बी, दिस इज बी, दिस विल बी ए। नोटिस करें ए साइड डायगोनल्स होंगे, दिस विल बी सी, this will be C, this will be C. Same goes for here.
B, B, A, C, C. I'm sorry अगर इसमें थोड़ा time लग रहा है, but I'm hoping you get the sort of the gist of what I'm trying to do. I know कि इसमें थोड़ी ख्वारी है, but the idea is मेरे दिमाग में ये picture है, but I'm trying to tell you what this entire question is. ज़रूरी नहीं कि आप ये method follow करें, but the idea is you need to have an idea on what a question is sort of asking you to do later on. If you feel that you don't need to do this, please don't. ठीक है, अब ऐसे मैंने सारे जो सैम्पल पॉइंट्स हो सकते हैं ना, उनके मैंने केसेस बना दिए कि ये वो केसेस है. अब मैं जो मैंने टेबल पहले बनाया था ना, I'm going to go to that because that will help me sort of find the probability. ठीक है, अब interpreting sort of this information, right side पे मेरा x है, sorry horizontal side मेरा x है, vertical side मेरा y है. What is the case for when y is 0 and your x is 1? तो अगर मैं इस साइड पे आऊँ, y is 0 का मतलब they're supposed to have the same value. तो सारे a वाले cases. What's the case जिसमें खाली 1 होती है आपकी sort of red की value? ये खाली ये वाली value है. If you can see my cursor, तो खाली ये वाली value हो सकती है. तो इसकी probability क्या है? Total sample points 36 हैं, तो इसकी value होगी 1/36. Do you guys get this? If there's any confusion, let me know. But इसकी value 1/36 है. Now, अब ये कह रहे हैं कि they should be equal. Again, case A और value 2. Same case, one value, so 1/36. Note करें, ये खाली हर value का same होगा. So all of these values will now be 1/36. क्योंकि एक ही case हो सकता है हर value में जिसमें your red dye is equals to your green dye. मैं इसको सही कर देता हूँ. ठीक है, अब ना मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ना, ठीक है. अब हम आ जाते हैं 1 पे. 1 का कहने का मकसद ये है कि केस 1 क्या है? इट्स बेसिकली B. तो सारी जो ये B वाली वैल्यूज होंगी ना, ये इससे हमें इंटरेस्ट है. और वैल्यू 1 नोट करें कि 1 का केस ये है, ये सारी जो वर्टिकल कॉलम है जो 1 का. So these are, and they have to be case B. So 5 values for 1. So that's 5. So that's 5/36. ठीक है, that's 5/36. Now अब 2 पे आ रहे हैं. 2 पे red की values only 4 values of B. तो ये 4/36 हो. Note how these values are very easy to sort of figure out once you've made this table. ये होगा 2/36. मैं फॉर रेफरेंस के लिए ये टेबल आपके पास यहाँ रख देता हूँ. द मीटिंग विल एंड इन 10 minutes. ठीक है, तो आई विल स्टार्ट द न्यू मीटिंग, I'll end this call in a bit. ठीक है, so this will be 1/36 and this will be 0. 0 इसलिए क्योंकि at x is equals to 6 कोई वैल्यू b की नहीं है. ठीक है, सेम गोल. अब मैं 2 पे आता हूँ. 2 क्या है? हमारा केस c है, and for value 1 कोई c की वैल्यू नहीं है. This is 0. Note how this will be the exact opposite of जो हमने ऊपर केस 1 के लिए डिफाइन किया. तो अगर ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, so this will be 1/36, this will be 2/36, this will be 3/36, and so on. And the last value will be 5/36. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ. ठीक है, so I have made part A. ये basically part A था. अब the reason why you do this query is because it will help you tremendously in the other 2 parts. खास तौर से, I'll say this again, once you know the joint PMF, it's very easy to find the marginal PMF and the conditional PMF. I am not going to do the working now because we're short on time and we need to do 4 more questions. But this is basically the same as question 1. अगर मुझे marginal PMF of Y निकालना है ना, marginal PMF of Y के basically सारी जो ये horizontal columns है ना, इनकी मुझे probability add करनी है. So I'm going to write this very straightforward. ठीक है, तो what will this value be for P y is equals to 0
That's basically 6/36. Basically मैंने सारा ये horizontal column को add किया. P of y is equals to 1 is basically you sum all of these values, which will be I think 15/36. ठीक है, 15/36. Note how P y1 and y is equals to 2 will have the same values in terms of probabilities. तो ये होगा, ये भी होगा 15/36. Do all of them add up to 1? जी they do. My answer is correct. ठीक है, sorry. ठीक है, and expectation क्या है? For expectation all you have to do is क्या कहते हैं? Expectation of y is basically multiply the value with the probability. So this will be 0 into 6/36 plus 1 into 15/36 plus 2 into 15/36. ठीक है, and that will be your expectation. So ये आपका part A. I know this seems very messy right now, but don't worry, I'll fix it. But the idea is I want to talk more and do less working so that you know how I'm conceptualizing the question when I have this question in the paper. ठीक है, I'm done with part A, I'm done with part B. Do you have any questions? I'll wait for like 5 seconds. If not, I'm gonna move to part C, so to speak. I'm going to do part C on the left side because so that you can see the question. ठीक है, part C basically कह रहा है find the conditional probability of x when y is equals to 1. You know, in hindsight, it's very easy because you have now you basically have to plot, sort of find the values of x conditioned on 1. So what are the values when what's the case when y is 1? It's basically b. तो आपको ये सारी values plot करनी है. ये case b है ना, तो अगर if your x is 1, अगर ये case है तो आपकी probability क्या है? नोट करें, x का deals with red, x यहाँ पे red 1 है. So इन cases में कितनी values हैं जो क्या कहते हैं b है? 5. So this is 5/36. This will be 4/36, and I guess you can like plot the rest yourself. The idea is all of them should add up to 1. No wait, मुझे they एक चीज won't समझ add. नहीं आ रही. आप probability of 1 given 1 कर रहे हैं ना, तो इससे हमारी sample space तो reduce होनी चाहिए ना. जी जी, तो आप 5/36 I agree. हाँ, ये I realized they're not adding up to 1, तो मैंने कुछ गलत किया है. हाँ, thank you for pointing it out. बेसिकली मैंने जो अभी ये बात की थी ना, उससे मैंने अपनी गलती ये रियलाइज की है कि अगर मैं ये करता ना, they would not have added up to 1. So the mistake I made was that the sample space I used was 36. It is not 36, it is 15. I don't know कि किसने, I think बदर ने point out किया था. Thank you very much. Thank you बदर. तो अब चेक करें कि आपके total number of points कितने हैं. There are 15 points. 5, 9, 12, 14, 15. सही 15 points हैं. तो इनमें से this will be 5/15, this will be 4/15, this will be 3/15. Again, ऐसे ही जो मैंने मिस्टेक जो मैंने की है, it is very plausible कि आप लोग भी वो कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ ना करें आप लोग की गलतियाँ, लेकिन हो सकती हैं, possible है. लेकिन they're very the good thing about probability is you can catch your mistake very easily. यहाँ पे they did not add up to 1, तो इसलिए मुझे पता हो गया कि पता चल गया कि मैंने कोई गलती की है. अब अगर इसको should I do this further? So I'm going to leave it at that. They all should add up to 1. 4/1 will be 2/1. 5 conditioned 1 will be 1/15, and 6 conditioned 1 is 0 क्योंकि कोई value है नहीं तो when basically red की value 6 है और उसका case B में fall करे. ठीक है? So I'm done with this question. Are there any questions? If they're not, I'm gonna end the call in 10 seconds and I will restart the same call from this link again. So आप लोग, as soon as I end it, please join the call from the same link.
ठीक है, great. So just to have an idea, these are the questions that we have to do. Question 3 करना है, फिर question 4 करना है, 5 and then 6. अब हम आ गए probability distribution पे. वो हमने पहले conditionals को touch कर रहे थे. अब हम आ रहे हैं proper random variable distributions. ठीक है, I'm ending the call now. I hope all of you come back for the next session. जो भी शुरू होने वाला है. Great. Okay, so I think the logo is also here for the recording, so I'm going to do the question. Say, give yourself a minute to read the question. Okay, question क्या है क्या बात? Say, a certain chef in a restaurant overcooks meat one in every 20 dishes on average. Initially, I'm going to write down my thought process, ठीक है? Initially when I read this मेरे दिमाग में आ रहा है कि शायद कोई लैम्डा हो, ठीक है? So लैम्डा, अच्छा मैं लैम्डा का एक शॉर्ट फॉर्म अभी यूज कर लूंगा L1 के नाम से. अगर मैं L1 यूज कर रहा हूँ तो मैं लैम्डा. So my L1, my lambda is 1/20. ये instantly मैंने खाली पहली sentence सुन के पढ़ लिया. The very important critical thing with distribution is that you need to read the question and know what distribution it falls down on. क्योंकि लोग अमूमन गलती करते हैं बर्नूली में, ज्योमेट्रिक में और हाँ बर्नूली ज्योमेट्रिक में, और फिर बाद में फर्क आता है पॉइजन और नेगेटिव बाइनोमियल में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाई डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मकसद है. ठीक है, find the probability that the 10th dish he cooked is the first one with the overcooked meat. ठीक है, so first one after n trials. ठीक है, तो can you guys tell me कि ये कौन सी distribution है? मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बात बताइए. Geometric. जी, you're right. जी, you're right. It's this is a geometric distribution, and the reason is because they're asking you for the first success after n trials. इसलिए ये geometric है. ठीक है, अब now suppose ठीक है, find the probability that the 10th dish he cooked. ठीक है, so what they're asking you to do is your n is equals to 10. Your one important correction, ये lambda नहीं होगा क्योंकि geometric है. This will be the probability of your success. So it's not lambda is equals to 1/20. It's p is equals to 1/20 because that is this the prob of success or the average of success of the cook of basically overcooking the meal. ठीक है, आपको n पता है, आपको p पता है. That these are all the parameters that you need to know for geometric, right? तो मैं directly इसको करूँगा. It's basically q. The formula is q to the power क्या कहते हैं n-1. क्या आपके इतनी दफा ट्रायल्स आपके रन हुए, multiplied that by the first success. क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर आपके 10 ट्रायल्स जो है, मतलब आपके पहले 9 ट्रायल्स खराब हुए और आपका 10वां ट्रायल सही था, so इसलिए आपका n-1 होता है. आपका q की वैल्यू क्या होगी? 1 - 1/20. ये गलत लिख दिया. 1 - 1/20 to the power 9 into the probability of its success, which is 1/20. ठीक है, legitimately बस यही करना है. I think इसका आंसर you don't, if you want, you don't have to calculate it. I have this calculated. This is 0.0315. Any confusions? क्योंकि this was the easy part B है जो actually थोड़ा tricky है, तो अभी उस पे हम आएंगे. ठीक है, great, there is no confusion. Lovely. अब मैं part B पे आता हूँ. Part B basically कह रहा है कि now suppose that the first 10 dishes he made are not overcooked. मतलब conditional probability लगनी. What this means is, suppose the first 10 dishes he made are not overcooked. Basically, मेरा let's say मेरा x मेरा sort of variable है ना, तो पहली 10 dishes मेरी overcooked नहीं है. They're not overcooked. हाँ, they're not overcooked. What is the probability that basically जो ये मैंने अभी x greater than 10 है ना, इस पे कुछ condition करना है मुझे.
अब मुझे मालूम करना है कि क्या चीज पे कंडीशन करनी है. What is the probability that the first overcooked dish will be the 15th one? ठीक है, so मुझे ये मालूम करना है. ये मैंने इसको सही तरीके से लिख दिया. If there is any confusion as to ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, please raise your hand or ask on the chat. ठीक है, अब मैं इसको solve कैसे करूँगा? Conditional probability, I'm going to expand it in the way that we do deal with conditional probability. This is x is equal to 15, comma x is greater than 10. ठीक है, and this will be divided by the probability of x is greater than 10. ठीक है, ये basically and operator है. ठीक है, अगर ये मसला हो रहा है तो मैं इसको सही ऐसे लिख दूंगा. मुनीस, मेरे ख्याल में तो आपको सिर्फ 15 एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए. मतलब 14 तक आपको सक्सेस नहीं मिली और 15 पे आपको सक्सेस मिल गई है. हाँ, लेकिन अभी मैं उस पर आऊँगा. दी आइडिया इज अभी पहले मुझे इस स्टेटमेंट को थोड़ा और समझ के एक्सपैंड करना है. आपकी बात सही है, लेकिन याद रखें वैसे जनरल एक्सपेरिमेंट्स आप रन करते हैं ना, उनका अलग केस होता है. और बेसिकली द प्रोबेबिलिटीज चेंज व्हेन यू हैव अ कंडीशनड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसकी वजह से आपकी सैंपल स्पेस कम हो जाती है. बट यू आर राइट, मैं भी उस पर आता हूँ. ठीक है, अब अगर मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहूँ, what do they mean when they say x is equals to 15 and x is greater than 10? कहना ऐसे हुआ. अच्छा, अगर मेरी स्ट्रेट लाइन सही नहीं हुई तो आई अपोलोजाइज, लेकिन there's not much I can do about it. ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, ये 10 है. ठीक है, ये 10 है. अगर इससे ग्रेटर जाना है, बेसिकली मेरा सैंपल स्पेस ये है फॉर x is greater than 10. ठीक है, दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर x is greater than 10, और वो कह रहे हैं कि x is equals to 15. अगर एंड कंडीशन लगी हुई है तो एसेंशियली तो खाली एक ही वैल्यू हुई ना, जो पूरा सॉर्ट ऑफ केस को केटर कर रहा है. ठीक है, सो यू हैव अ रेंज, उसमें से x is greater than 10 and x is equals to 15. Basically there is only one point which is x is equals to 15 that can sort of cater to the and condition, जिसकी वजह से जो मैं ये लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, this term will now be p x is equal to 15 upon p x is greater than 10. Are there any confusions with what I just read? ये जो मैंने and को सिंप्लीफाई किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? मुझे आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, सिर्फ वहां तक नजर आ रही है जहाँ पे आपका 0.0315 आंसर लिखा हुआ है. अच्छा ठीक, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ बेशक. Is it better now? Yes, it is. Okay, great. ठीक है, if it's fine now then that's it. सही है, तो x is ठीक है, but are there any confusions as to why I did what I did? If not, ठीक है, अब मैं इसको इनके वैल्यूज निकालता हूँ. ठीक है, x is equals to 15 तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. What that basically means is आपका Q रन हो रहा है, आपके फेलियर्स 14 दफा हुआ है एंड आपका जो सक्सेस हुआ है वो एक दफा हुआ है. Now it's very important for you to understand कि x is greater than 10 का क्या मतलब है. X is the probability of x greater than 10 is basically saying that आपको बस इतना बताया गया है कि the first 10 attempts are unsuccessful. आपको नहीं पता कि आपका सक्सेस कब आएगा, इतना बस पता है कि जो आपकी पहली 10 बारियां जो हुई हैं उनमें से आपका फेलियर है. So based on that interpretation, आपकी जो ये वैल्यू होगी, that will be q to the power 10. क्योंकि नोट करें जब आपकी पावर प्रोबेबिलिटी बढ़ती है ना, तो जितनी आपकी पावर बढ़ रही है उतनी वो वैल्यू छोटी भी हो रही है. ठीक है, सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम आपका जो ये सिंप्लीफिकेशन है ना, ये मैटर नहीं करता, बिकॉज इट विल बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू, इट वोंट अफेक्ट द एंटायर प्रोबेबिलिटी. लेकिन वो एक डिफरेंट केस में होगा. इसमें उन्होंने हमें ब्लंटली बताया हुआ है कि the only thing we know is that the first 10 dishes are not overcooked. So the first 10 cases are a failure. ठीक है, अब on a very serious note, if you want I can solve this further, but आपको पता है आपका p 1/20 है, तो automatically आपका q 19/20 है. You guys can solve this and that will be the answer.
मनीष मुझे एक चीज आप क्लियर कर देंगे, आपका जो जी ऊपर था ना प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 15 एंड x ग्रेटर देन 10 हाँ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10। जी। आपने खाली उसको ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको सिंपलीफाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 15 क्यों कर दिया है? अच्छा ठीक, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। ये जो मैंने डायग्राम बनाई ना बहुत घटिया सी, आप ये देख लें कि ये जो केस है ना, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ डायग्राम में तो क्या होगा, ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन 10, सो इट कैन बी 10 11 12 13 14 15 16 सो ऑन। ये एक रेंज है जो मुझे x इज ग्रेटर देन 10 बता रही है। दूसरी कंडीशन ये है x इज इक्वल टू 15, दैट्स ओनली वन पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इसका एंड कंडीशन लूं तो कौन सी एक वैल्यू है जिसमें मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट्स p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15। ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली यही जो इंटरप्रिटेशन थी यही मुझे समझानी थी। इफ यू कैन गेट दैट, देयर इज ऑनेस्टली नथिंग मोर इन दिस क्वेश्चन। मैं बात वही कहूंगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ये जो probability distributions है ना, they're very easy, but you just need to know how to sort of know which approach to use and what sort of distribution you have to use. ठीक है, I'm moving on to question 4. If you have any questions about question 3, आप मुझे बता दें. Don't worry on the working again. I know मैं अपने आप को कई दफ़ा repeat कर रहा हूँ, but the idea is I will send a proper working later. अभी बस मैं अपना thought process आपको बताना चाह रहा हूँ. ठीक, question 4 आप लोग सब पढ़ लें, मैं भी पढ़ रहा हूँ. Vehicles pass through on a busy road at an average rate of 300 per hour. Passes. ठीक है, if you've read the question, ठीक है, मैं question पढ़ के जाता हूँ. Vehicles pass through on a busy road at an average rate of 300 per hour. अच्छा, ये मुझे suspect हो रहा है कि ये शायद poison है. I might be wrong. ठीक है, this might be poison. ठीक है, अब it's very important. अगर ये poison है ना, तो poison की the only trick that you need to keep in mind is that you should be very careful of the units that you're using for lambda. उन्होंने लिखा है 300 per hour. मैं अपनी आसानी के लिए, बेशक मैं वर्किंग में ना डालूं, अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ my lambda is 300 per hour. पार्ट ए पूछ रहा है find the probability that none passes in a given minute. हाँ, ये poison है, confirmed poison है, because the idea of a poison is that they give you an interval and you have to find the number of occurrences that happen in a certain interval. ठीक है, तो मेरा lambda 300 per hour, but the trick is they've said that none passes in a given minute, so that means I have to change my lambda. So my, for part A, my new lambda L2 will be 300 divided by 60. Oh, sorry, 300 divided by 60, which is what, 5? 5. So that's 5 per minute. Again, units please लिखा करें अपनी आसानी के लिए, so that you don't mess up with the later calculations. अब basically मुझे number निकालना है ना. Find the probability that none passes in a given minute. So that's n is equals to 0. और फिर I'll try to write as efficiently as I can write it. This will be minus L2. ठीक है, this will be multiplied by L2 to the power of n, जो हमने कैलकुलेट किया था, जो n 0 है, सही है, 5 to the power 0, and this entire thing will be divided by n, जो है 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है. ठीक है, I've calculated this value and this is 0.006738. So if you want to clarify कि आपको सही है, I'll read out the formula again. It's e to the power minus lambda into lambda to the power of n upon n lambda. ये आपने क्लास में भी कवर किया हुआ है. ठीक है, naturally आपने क्लास में कवर किया हुआ है. Okay, so that's part A. Now I'm going to part B. Part B कह रहा है what is the expected number of vehicles passing in 2 minutes. अच्छा, what's the expectation of a Poisson variable? किसी को पता? It's lambda. Perfect. Thank you. Thank you. नहीं, thank you. ठीक है. It's Patrick, can you अपना mic आप बंद कर सकते हैं क्योंकि there is a lot of noise. Thank you.
ठीक है, आपका लैम्डा है। अब नोट वन थिंग, मैं खाली अभी इसको लैम्डा लिखा हूँ, उन्होंने अगेन प्लीज बी वेरी केयरफुल द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू यूजिंग, उन्होंने मिनट्स लिखा हुआ है, सो लैम्डा lambda basically 5 के आसपास होगा, but they've asked you passing in 2 minutes. आपका 5 तब होता है if they asked you what is the expected number of vehicles passing in 1 minute. तो उस पे क्योंकि 5 per minute है ना, तो basically the number of minutes that you have to calculate, उससे आपको multiply करना है with the average that you have. By average I mean lambda. So this will be lambda 3, which is 2 into lambda 2, which is 2 into 5. I will say this again. आपने आपका जो lambda होता है वो per minute होता है for 1 minute. If they've asked you the expected number of vehicles passing in 2 minutes, then you have to multiply your lambda with 2 or the number that they've asked you to calculate for the expectation. ठीक है? Part C. Find the probability that the number of vehicles passing is equal to the expected value calculated in part B. ठीक है, what they're essentially saying is I need to find the value, find the probability for n is equals to 2. Sorry, for n is equals to 10. Find the probability for n is equals to 10. अब आपका lambda तो 10 है, क्योंकि आपका 2 मिनट्स का कैलकुलेट करना था, तो आप L3 ही यूज करेंगे, ठीक है? ठीक है, you're going to calculate for n3, और इसको मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ e to the power minus 10, और ये minus 10 है वो आपका L3 जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया ये वो है, multiplied by 10 to the power of n is equals to 10 जो आपका 10 है. Again it's very important to know कि कौन सा क्योंकि दोनों 10 है तो it gets very confusing. Upon 10 factorial which is basically n factorial, तो ये 10 factorial आपका यहाँ पे आया. So that's essentially what you had to do, and that's equals to 0.1251. Any confusions? मुझे लग रहा है इधर लैम्डा की वैल्यू तो 5 नहीं होनी चाहिए. नहीं, बेसिकली उन्होंने ना कह ये रहे हैं कि find the probability that the number of vehicles passing is equal to the expected value calculated in part B. कहना ये चाह रहे हैं कि for lambda is equals to 2, basically for the interval which is 2 minutes, आपका what is the probability कि 10 cars are fast. ये आपका केस तब वैलिड होता अगर वो कहते for 1 minute, but because they've asked you कि use the same expected value जो आपने part B में use किया है, हम इसका मतलब ये हुआ कि हम part B का ही lambda use करेंगे, तो इसलिए आपका n भी 10 है और आपका lambda भी 10 है. इससे हमारा लैम्डा तो हर n की वैल्यू के लिए डिफरेंट हुआ ना, मतलब कांस्टेंट तो रहा ही नहीं. नहीं देखें, जो कह रहे हैं ना इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट बी, ये तो ऐसे उन्होंने नंबर कह दिया, वो तो ये भी कह सकते थे इज इक्वल्स टू 9 और 7, वो एक अलग कहानी है. द नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, द इंटरवल इज इम्पोर्टेंट. हम जो इंटरवल यूज कर रहे हैं वो 2 मिनट्स का ही यूज कर रहे हैं, इसलिए जो हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे वो 2 मिनट्स वाला ही लैम्डा यूज करेंगे, ठीक है? They could have just said that find the probability that the number of vehicles passing is equals to 9, और उन्हें कोई इंटरवल शायद डिफरेंट डिफाइन करते, तब अगर वो स्पेसिफिक डिफरेंट इंटरवल डिफाइन करते ना तब हम एक अलग लैम्डा कैलकुलेट करते, बट बिकॉज दे हैवंट स्टेटेड दैट हम पार्ट बी का लैम्डा यूज करेंगे, ठीक है? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, be very blunt as to what lambda you're using. More often than not, ये तो एक बुक का सवाल है, वैसे सारे क्वेश्चन ट्यूटोरियल होते हैं वो मोहन बुक का ही होते हैं, बट अगर कोई एग्जाम आएगा ना तो दे विल स्पेसिफाई कि आपका लैम्डा क्या है, या क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि यू हैव टू फिगर आउट व्हाट लैम्डा यू हैव टू यूज, ठीक है? ठीक है, I say that's it with question 4. If you're still confused about part C का lambda, we can go over this after the tutorial, ठीक है, ताकि proper concept clear हो जाए. नहीं हो गया क्लियर. थैंक यू. Thank you. जी नुमान, आपका एक सवाल था? ये 300 पर आवर जो है इससे हमने L2 किस तरह निकाला, लाइक इधर n क्या है p क्या है?
बेसिकली देखें, होता ये कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करने है कि ये पॉइजन है। पॉइजन में ना आपकी लैम्डा की यूनिट्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उस यूनिट के हिसाब से होगा। 300 पर आवर है, लेकिन पार्ट ए हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन पासेस इन अ गिवन मिनट, मतलब आपका जो इंटरवल था वो कम हो गया। योर लैम्डा इज स्पेसिफिक टू अ सर्टेन इंटरवल, तो हमें 300 जो पर आवर था हमें इसको कन्वर्ट करना था मिनट्स में, सो दैट इज व्हाई वी डिवाइडेड बाय 60, तो इसलिए वो 5 पर मिनट आ गया। हमने पर मिनट का लैम्डा निकाल लिया। पार्ट बी में कह रहे हैं कि उन्होंने 2 मिनट्स का निकालना है। सो एसेंशियली व्हाट दे आर सेइंग इज आपको आपका जो इंटरवल जो पहले x था, पार्ट ए में जो आपने इंटरवल x का निकाला है, अब आपको 2x का एक्सपेक्टेड नंबर निकालना है। इसलिए जो हमने पार्ट ए का इंटरवल निकाला था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। इफ दे आस्क्ड यू कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग इन 67 मिनट्स, ठीक है, तो आपने पर मिनट का निकाल दिया, एवरेज इतना है, और आपने जो आपका इंक्रीमेंट है 67 उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए हमने किया, हमारा मेन गोल ये होता है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने यूनिट्स को कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। ग्रेट, अब मैं आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ठीक है, I'll give you guys a minute to read the question. अच्छा, who can tell me कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन पे फॉल कर रहा है, बिकॉज पूरा गेम ही उसका ही है, बाकी तो सारा बस इंपोर्ट करना है। जी था, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल या नॉर्मल, ओके, कौन सा वाला? क्वेश्चन है पूरा, मैं सिर्फ पहली लाइन को देख के मतलब जी जी बता रहा हूँ। जी जी, सुकून से पढ़ो। I'll start as soon as someone tells me the distribution. अगर किसी को नहीं आती कोई मसला नहीं, that is why you're here to learn. Sorry. It's like a negative binomial because the question is view mirror until the third defective mirror. Right. You're absolutely right. It's a negative binomial. अब मैं बताता हूँ, मैं अपना thought process बताता हूँ. In a production process, the probability of manufacturing a defective rear view mirror of a car is 0.075. So P is equal to 0.075 of what? Of you having a defective face. Naturally, Q होगा आपका 1 minus 0.075, which basically means the probability of it not being defective is 1 minus 0.075. अच्छा, फिर कह रहे हैं assume that the quality status of any rear view mirror produced in this process is independent. ठीक है, independent एक बहुत जरूरी criteria था, वो हो गया, वो तो ज़्यादातर criteria में होता है. A quality control inspector is to examine rear view mirrors one at a time to obtain 3 defective mirrors. तो हमारा goal है 3 तक पहुंचना है. Determine the probabilities that the third defective mirror is the 10th mirror examined. 100% this is a negative binomial. Reason being, because they're asking you how many trials will it take for you to have a kth success. ठीक है, how many number of trials you have to take. Trials मतलब मैं n लिख देता हूँ या कैपिटल N लिख देता हूँ. आपको कितनी दफा चेक करना होगा, कितनी दफा ट्रायल्स रन करने होंगे ताकि आपके इतने नंबर के सक्सेस आ सकें, और ये केस होता है नेगेटिव बाइनोमियल. ठीक है, अब legitimately अब आपने ये समझ लिया, the entire question is very easy. You just have to input the values into the equation. तो x is equals to 10. ठीक है, आपकी नहीं, यहाँ पे तो मैंने n यूज किया ना, तो n is equals to 10. यार I'm gonna try to write it खुद से. I apologize अगर मैं सही से नहीं लिख पाऊँ, क्योंकि ऐसे फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा. Oh my God. Give me a second. I don't know why this isn't working. ठीक है, so this will be n minus 1 और ये होगा आपका k minus 1. अच्छा, k इन्होंने बताया हुआ क्या करती है. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला P जो the probability of your success
वो बेसिकली आपकी ये वाली k minus 1 वैल्यू होगी, ठीक है. So that's k minus 1. Q will be basically n minus 1. Again, I'm very sorry अगर writing अच्छी नहीं है, but the idea is okay, it should just make sense, so to speak. K minus 1. Now the catch is ये जो आपको बताते हैं ना ये टर्म, ये आपको बताते हैं कि आपके आखिरी ट्रायल से पहले आपके इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स हो चुके हैं. These are for n minus 1 ट्रायल्स, ठीक है. तो आपको इसको एंड पे मल्टीप्लाई करना होता है p, जो आपका आखिरी सक्सेस होता है, जो आपका आखिरी ट्रायल होता है उस पर आपका सक्सेस आता है. सो वी मल्टीप्लाई दिस एंटायर टर्म बाय p. नोट करें कि जो जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना, वो nck to the power pk to the multiplied by q to the power n minus k होता है ना, वही एक्सप्रेशन है, ठीक है. इसलिए मैंने इसको ऐसे ही इसको छेड़ा नहीं है, बस इसको आखिरी में मल्टीप्लाई p करने, क्योंकि आपका जो आखिरी ट्रायल होगा वो आपका सक्सेस होगा, ठीक है. दैट इज द एंटायर गेम ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसे आप फॉर्मूला याद रख लें कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आप बस जनरल बाइनोमियल का फॉर्मूला याद रखें. क्या होता है वो n k वाला, यहाँ पे n minus 1 k minus 1 डालें. इससे जो ये वाली वैल्यू है वो आपकी p की वैल्यू होगी, q की वैल्यू होगी n माइनस, जो n ऊपर वाली वैल्यू है माइनस नीचे वाली वैल्यू है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय p. काफी लोगों को एंड पे फॉर्मूलाज याद रखना मसला होता है. सो दिस इज अ गुड कोट ऑन कोट जुगाड़ टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है. As much as I would want to do the formula right now, time हमारे पास कम है क्योंकि it's 8:05 already. तो आपको values पता है, मैं बस just confirm कर देता हूँ. n10 है, k3 है, ठीक है. ये आपका 0.075 है और आपका q है 1 minus 0.075, ठीक है. You just have to input this into this equation, आपका आंसर आ जाएगा. Any confusions? हमें इस वाले क्वेश्चन में तो n गिवन है कि वो 10 है. जी. अगर हमें n का ना पता हो, वो क्वेश्चन ये हो कि आपका थर्ड मिरर कब डिफेक्टिव होगा और तो हमें n नहीं पता, तो इस केस में हम कैसे करेंगे? तो फिर वो नहीं क्यों, तो फिर वो नेगेटिव बाइनोमियल लगेगा ही नहीं ना इसमें, फिर तो वो केस ही डिफरेंट हो जाएगा. तो उस केस में हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन को? तो फिर वो आई थिंक एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, कि आपने, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि आपने कितनी दफा आपको रन करना है, कि आपकी बेसिकली वो आप बाइनोमियल का केस होगा, एंड इंस्टेड ऑफ यू नोइंग द नंबर ऑफ ट्रायल्स यू विल नो द प्रोबेबिलिटी, और फिर उसमें आपको क्या कहते हैं, जो ट्रायल एंड एरर से आपको वैल्यूज डालनी होंगी टू सी के वैल्यू क्या है. अगर आपको n नहीं पता हो तो देन आई डोंट थिंक आपको फिर नेगेटिव बाइनोमियल लगाना होगा. हालांकि वैसे अगर देखा जाए आप ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं, बट इट विल जस्ट गेट टीडियस, ठीक है. नोट जस्ट व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि आपका नेगेटिव बाइनोमियल किस केस को ट्रीट करता है. जो आप कह रहे हैं ना वो पे केस ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है. चलो ग्रेट. उस केस में कौन सा लगेगा? जिसमें आपको n कैलकुलेट करना हो. जी जी, ठीक है. तो आई थिंक वो फिर बाइनोमियल होगा ना. वो बेसिकली बाइनोमियल कहता है कि यू रन दिस मेनी ट्रायल्स ताकि आपके इतने सक्सेस आ सकें, ठीक है. और वो आप बेसिकली आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है. तो आपको बाइनोमियल का केस लगेगा, बस फर्क क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और आपको वो ट्रायल एंड एरर से वो n की वैल्यू निकालनी होगी, जिसमें आपका वो जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल हो रहा है, सो टू स्पीक, ठीक है. तो ठीक है. इस केस में हमारा आंसर मतलब को न्यूमेरिकल नहीं आएगा, n की फॉर्म में आ जाएगा. हाँ, याद रखिए कि n आपका जब तक हम- डेसिमल्स में नहीं हो सकता है, इंटीजर होना जरूरी है. हाँ जी, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसका आंसर निकालें तो ये n की फॉर्म में आ जाएगा कि वो n पे डिपेंडेंट होगा हमारा आंसर. बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी. ओके. ठीक है. और फिर आप कैलकुलेटर में n की वैल्यूज इंपुट करके देख सकते हैं टू सी के कौन सी वैल्यू आपकी n की इट गिव्स यू द बेस्ट आंसर, ठीक है. अच्छा, अब we're in the last question. Jane goes to the bank to make a withdrawal and is equally likely to find 0 or 1 customers ahead of it. ठीक है. ठीक है. तो एक इवेंट है जो बता रहे हैं कि आपके पास आपके कितने कस्टमर्स आपके आगे हैं, और दूसरा इवेंट बता रहे हैं कि आपका वेटिंग टाइम कितना. ओके, दिस विल एंड इन 10 मिनट्स. आई विल ट्राई टू डू दिस एज क्विकली एज आई कैन. तो मैं पहला इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ y. आप कोई भी नंबर वैल्यू ले सकते हैं, मैं अपनी आसानी के लिए y कर रहा हूँ. दीज आर द नंबर ऑफ कस्टमर्स.
जो बेसिकली हमारी वैल्यू हो सकती है, इट कैन आइदर बी 0 और इट कैन बी 1, और कोई वैल्यू हो नहीं सकती। x इज बेसिकली द वेटिंग टाइम एंड दैट इज, उन्होंने बताया हुआ कि दिस इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पैरामीटर। ठीक है, वेटिंग टाइम, और इस पे ये है हमारा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियल का फॉर्म अज्यूमिंग पता होगा। दे आर सेइंग फाइंड द CDF ऑफ जेन्स वेटिंग टाइम, तो हमें fx निकालना है बेसिकली, द CDF ऑफ f, ठीक है, which is basically all the values that fall into the criteria for which x is greater than equal to x, ये आपका CDF होता है एक्सपोनेंशियल का। अब द थिंग इज, आपके दो केसेस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जो वेटिंग टाइम होगा दैट विल बी कंडीशनड ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, और अगर आपको याद हो टोटल प्रोबेबिलिटीज के, या तो जो डिनोमिनेटर होता था टोटल प्रोबेबिलिटी का, जो बड़ा एक्सपेंशन टर्म होता था, वो बेसिकली कंडीशनड होती थी। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग टोटल प्रोब, हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और एक्सपैंड करके क्या होगा, दिस विल बी p greater than equals to x given the two y के केसेस जो हमारे पास हैं, which is this multiplied by the thing on the right which is y is equals to 0। याद रखें ये सारी टोटल प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स आप पहले कर चुके हैं, तो these अगर इस तरह आपको टेस्ट करें, he is more in the right to sort of test you on it, क्योंकि जाहिर सी बात है you've done a test on this, you should know this। और फिर ये आपका केस होगा 1 का for y is equals to 1। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, मैं इन सबको करता हूँ सॉल्व, लेकिन पहले समझिए कि ये क्या क्या है। अगर मेरे पास कोई कस्टमर्स आगे नहीं है तो मेरा वेटिंग टाइम कितना होगा, नथिंग, या अगर होगा भी तो एक ही वैल्यू होगी, कोई और मल्टीपल वैल्यूज नहीं, कोई और फैक्टर नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ दैट वन इवेंट हैपनिंग, 1। सो दिस विल बी 1 into 1/2। नोट करें कि जो y की वैल्यूज हैं ये इक्वली लाइकली, तो p y is equals to 0 and p y is equals to 1 is 1/2। बट द आइडिया आप पहले ये कंडीशन समझें कि ये क्या है। अगर कोई मेरे आगे कस्टमर नहीं है तो मेरा कोई वेटिंग टाइम नहीं है, तो मतलब कोई खाली एक ही केस है जो पॉसिबल है, और एक ही केस हो आपके सैंपल स्पेस में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मतलब कोई कंफ्लिक्टिंग प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई और लाइकली केस नहीं है, या कोई और सैंपल पॉइंट नहीं है जिसकी कोई प्रोबेबिलिटी हो, तो इसके लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। वेटिंग टाइम तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, तो वो वेटिंग टाइम, बिल्कुल बिल्कुल वेटिंग टाइम कंटिन्यूअस वेरिएबल है, लेकिन आप अगर इसको y से कंडीशन कर, वेटिंग टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट यू हैव। ठीक है, आपका जो वेटिंग टाइम होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके आगे आपके कस्टमर्स कितने हैं। अगर कोई वेटिंग टाइम नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट आगे जा रहे हैं, कोई आपके लिए वेटिंग टाइम वही नहीं, तो इट विल बी जस्ट वन वैल्यू, और उसकी बेशक जो भी वैल्यू एक्सपोनेंशियल हो बेशक हो, लेकिन कोई और कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज ऑफ x नहीं है, तो इट विल ओनली हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ x, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, क्योंकि कोई और सैंपल पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वेटिंग टाइम 0 नहीं होगा, 0 into 1/2। जरूरी नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लेकिन भी वन उस तो नहीं हो- जी वन भी तो नहीं हो सकता ना, ये तो कहीं पे गिवन नहीं है कि 1 यूनिट टाइम लगेगा। नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अज्यूमिंग यूर इन अ लाइन, ठीक है, यूर इन अ लाइन, कोई आपके आगे नहीं है, तो सीधे आप आगे आगे जा रहे हैं टू व्हाटएवर चेक पॉइंट यू हैव। उसके अलावा अज्यूमिंग यू हैव नो अदर पर्सन जो आपके आगे, वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी कोई और केस हो सकता है ऑफ इट हैपनिंग। नहीं, वो इवेंट तो 1 है, लेकिन उस इवेंट जो x है, ये नंबर ऑफ इवेंट्स तो नहीं है ना, ये अमाउंट ऑफ वेटिंग टाइम है। जी जी, तो दैट कुड बी एनीथिंग, लाइक वो कोई डिस्क्रीट 1 या 2 या 0 तो नहीं होगा, वो तो कोई भी टाइम हो सकता है। इट कुड बी देखें जो आपका जो, अच्छा ये तो फिर मुझे आपको बताना होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी निकालता है बिटवीन टू इवेंट्स। आपका जो एक्स का फंक्शन होता है ना, वो दो इवेंट्स लेते हैं और फिर उनके दरमियान एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालता है। तो इसलिए आपकी वो उन दो इवेंट्स पे ना आपकी वैल्यूज चेंज होती हैं। इसमें आपका खाली एक ही इवेंट है, तो इस पे तो आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग ही नहीं रहा ना। हाँ, मिसाल नहीं, लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये जो 1 है, ये प्रोबेबिलिटी दैट है, इज
ये बस प्रोबेबिलिटी है कि आपके एक ही वैल्यू है जो हो सकती है, मतलब इस केस में, और एक ही वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, क्योंकि कोई और केस है ही नहीं जो हो सकता है। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा दूसरे जब हम y is equal to इसका 1 मतलब आप करेंगे। ये कह रहे हैं कि जितना भी x का वेटिंग टाइम होगा उतना वो एज इट इज आ जाएगा ना, इन केस अगर कोई कस्टमर नहीं है। हाँ, वो x तो वैसे ही आएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो तो 1 होगी ना। हाँ ठीक है, क्लियर। ठीक है, x बेशक जो भी वैल्यू हो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन उस x के अलावा कोई और वाइथ वैल्यू नहीं है या कोई x टूथ वैल्यू नहीं है, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि खाली एक ही केस है आपका। ठीक है, अब मैं दूसरे केस पर आ रहा हूँ, y is equal to 1, मतलब आपके आगे एक कस्टमर है, तो एक कस्टमर है, सो यू हैव 2 इवेंट्स। वन इवेंट आप आ रहे हैं, आपके दरमियान एक वेटिंग टाइम है, और फिर वेटिंग टाइम से आगे आपके कस्टमर का बूथ है, तो बेसिकली यू हैव 2 इवेंट जिसके दरमियान एक सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लग सकती है। तो इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे जो आपका क्या कहते हैं होता है basically CDF of an exponential function, which is 1 minus exponential to the power minus lambda x. ठीक है, और this will be multiplied by the probability of y is equals to 1. अच्छा, meeting time 3 minutes रहता है, तो I'll try to finish this as quickly as I can. तो this will be multiplied by 1/2. अब just add this, और फिर आपका होगा 1/2 कॉमन ले लें, so that's 2, हाँ ठीक है, 2 माइनस एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला हमने कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ है? मैंने तो नहीं मेरे ख्याल में देखा कहीं। आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कवर किया हुआ? आप लोग मुझे नहीं। बता रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, आई एम सरप्राइज आपने नहीं किया। आई विल कंफर्म इट, इफ नॉट देन फिर मैं ना एक काम करूंगा, आई विल कंफर्म फ्रॉम द लेक्चर्स वेदर हमने किया हुआ है या नहीं। फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर आई थिंक हमने किया हुआ था, बट अगर नहीं किया हुआ मैं कोई और क्वेश्चन डाल दूंगा क्वेश्चन 6 के तौर पे ट्यूटोरियल्स में, या क्वेश्चन 7 के तौर पे ट्यूटोरियल्स पे डाल दूंगा, ताकि कोई और कॉन्सेप्ट बेशक टेस्ट हो जाए। बट फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर एंड फ्रॉम व्हाट वी डिड as well later on, I thought we've covered exponential, but khair, no worries. Is there anyone who does not know what the CDF of an exponential function is? चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, आई डोंट, ठीक है, तो आई थिंक फिर मेरी तरफ से शायद इट माइट हैव बीन अ मिस्टेक, शायद फिर एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए था। व्हाट आई विल डू टू बी सेफ इज दैट आई विल पुट अनदर क्वेश्चन, और मैं रिकॉर्डिंग के साथ वो ऐड कर दूंगा, एंड इफ यू वांट वो यूट्यूब पे अपलोड होगी, सो व्हेनेवर दिस ट्यूटोरियल गेट्स अपलोडेड मेक श्योर यू सी द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि फिर वो डिफरेंट होगा। ठीक है, सो आई विल कंफर्म दिस। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर यही था। ठीक है, जो ये एक्सप्रेशन आने वाली थी ना, दैट इज योर आंसर. So I guess we're done with the tutorial. Do you have any questions? Do you want advice? If you want advice, I'll stop this call. I'll end this call and I'll start a new call ताकि हम सुकून से feedback हाँ कर लें, क्योंकि मतलब क्विज के टाइम के हवाले से कहना था कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा दिया करें, मतलब क्वेश्चंस आते होते हैं पर हम पैनिक हो जाते हैं टाइम की वजह से, और छोटी छोटी मिस्टेक्स। ठीक है, I get you. तो अभी मैं काम करता हूँ. I'm ending this call now, and the next part of this call won't be recorded. So I guess that's it with the tutorial. If you want more advice, if you have questions, please join the call again, जो मैं 1 मिनट में शुरू कर दूंगा. Otherwise, thank you for being in the tutorial. I hope all the concepts were clear, and मैं दुआ करता हूँ आप लोग के बाकी टेस्ट भी अच्छे जाएं. ठीक है, thank you again everyone. खुदा हाफिज़.